صحیح کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پریشان کرو تو اس کے شر سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرو، ورنہ اگر وہ نقصان پہنچانے پر اتر آئے تو پھر اس سے بچنا ناممکن ہے۔ شروع کرتے ہیں اپنے ناول کی آج کی قسط۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو تاشفین کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کو خود پر سے بازو ہٹائے اور اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ منہ دھو کر باہر آئی تو تاشفین ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ روم سے نکل گئی اور ناشتہ بنانے کے ارادے سے کچن میں چلی گئی۔ ہبا کچن میں گئی تو بی اماں پہلے سے ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ ہبا نے فریج سے آٹا نکالتے ہوئے بی اماں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام چھوٹی بیگم صاحبہ، آپ اتنی سویرے کیوں اٹھ گئی؟ کچھ چاہیے؟ نہیں بی اماں، کچھ نہیں چاہیے، میں نے فین جی کے لیے ناشتہ بنانا اس لیے جلدی اٹھی، آج انہوں نے آفس جانا ہے نا؟ ہبا نے تہہ والا پراٹھا بیلتے ہوئے کہا۔ تاشفین کی آنکھ الارم کی آواز پہ کھلی۔ اس نے نیند میں ہاتھ بڑھا کر الارم بند کیا اور بند آنکھوں سے بیڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہبا کو ڈھونڈنے لگا۔ اس نے آنکھیں کھول کر بیڈ پر نظر دوڑائی جہاں ہبا کی جگہ خالی تھی۔ اس نے واش روم کی طرف دیکھا، اس کی بھی لائٹ آف تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور ہبا کو آوازیں دینے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ اسٹڈی، ڈریسنگ روم اور واش روم میں بھی چیک کر چکا تھا۔ وہ روم سے باہر نکل آیا۔ ہبا پراٹھے بنا کر چائے کا پانی لے رکھ رہی تھی تو اسے تاشفین کی آواز سنائی دی جو سیڑھیوں سے آتے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔ وہ بھی اماں کو چائے کا کہہ کر کچن سے باہر آئی۔ جی فین جی، کیا ہوا؟ میں کچن میں تھی، آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ آج آپ نے آفس جانا ہے نا؟ ہبا نے اس کے ماتھے پر بل دیکھ کر جلدی سے وضاحت دی۔ تاشفین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ہبا کا ہاتھ پکڑا اور اسے روم میں لے گیا۔ میری جان، میں پریشان ہو گیا تھا کہ کدھر چلی گئی ہو۔ آج کے بعد میرے جاگنے سے پہلے روم سے نہیں جانا۔ میں جاگ کر سب سے پہلے تمہارا خوبصورت چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ہر روز۔ تاشفین نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اس کے سامنے کارپیٹ پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ ٹھیک ہے فین جی، میں نے چائے رکھی تھی کچن میں۔ ہبا اس کی نظروں سے گھبراتے ہوئے اٹک کر بولی۔ تو کیا ہوا میری جان؟ بی اماں کر لیں گی، تم یہاں رہو، میرے کپڑے پریس کرو جب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں، اوکے میری ڈال؟ تاشفین اس کے گال تھپک کر اٹھ گیا اور واش روم میں گھس گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہبا کی سانس بحال ہوئی۔ اس سے دور بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ رات کو بھی اس نے دور رہنے کی کوشش کی تو تاشفین کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ صوفے پر سے اٹھی اور کبرڈ کی طرف بڑھی۔ اب میں کون سے کپڑے پریس کروں آفس کے لیے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے وائٹ شرٹ کے ساتھ گرے پینٹ نکالی اور اسے پریس کرنے لگی۔ نسا بیگم کی آنکھ تاشفین کی آواز پر کھلی جب وہ ہبا کو بلا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تو وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر روم کی طرف جا رہے تھے۔ پتہ نہیں اس منحوس کے ساتھ صبح صبح کیوں چیخ رہا تھا۔ واپس آتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے لیزا کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے ڈور پر ہاتھ رکھا تو وہ ان لاک تھا۔ انہوں نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو سارا کمرہ سنسان پڑا تھا۔ بے شکن بستر اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ الیزا رات سے گھر نہیں آئی۔ اب یہ لڑکی کہاں چلی گئی ہے؟ نہ آنے کا کچھ بتاتی ہے نہ جانے کا۔ تاشفین نے دیکھ لیا تو بھڑکے گا اس منحوس گوار کے ہوتے ہوئے۔ نسا بیگم صوفے پر بیٹھ کر اسے کال کرنے لگی۔ ابھی انہوں نے سیل ہاتھ میں لیا تھا تو دروازہ کھولنے کی آواز آئی اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے روم سے داخل ہوئی۔ نسا بیگم کو ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا؟ ہاں الیزا، انہوں نے ساخت لہجے میں اپنی بیٹی سے پوچھا۔ کلب گئی تھی دوستوں کے ساتھ، وہاں سے ہی اپنی دوست کے گھر رک گئی تھی امی۔ الیزا نسا بیگم کو وہاں دیکھ کر ٹٹکی، پھر سنبھل کر انہیں بے نیازی سے جواب دیا۔ تو ایک فون کال نہیں کر سکتی تھی؟ ابھی اگر آتے ہوئے تاشفین دیکھ لیتا تو تمہاری وہ اچھی طرح کلاس لیتا۔ کتنی بار کہا جلدی گھر آیا کرو، یوں بھائی نہیں رکا کرو۔ نسا بیگم نے اس کی بے نیازی پر کلس کر بولا۔ امی پلیز، میں نہیں ڈرتی ہوں تاشفین سے، اس کا نام لے کر صبح صبح میرا موڈ نہ خراب کریں۔ رات کو بھی میں اسی کی وجہ سے باہر گئی تھی تاکہ موڈ ٹھیک ہو سکے۔ اب آپ پھر سے شروع نہ ہو جانا۔ الیزا نے سینڈلز اتار کر پھینکی، سیل بیڈ پر پٹک کر واش روم میں چلی گئی۔ میں باہر جا رہی ہوں فریش ہو کر، ناشتے کے لیے آ جانا۔ رات کو بھی نہیں آئی تھی ڈنر پر، نسا بیگم یہ کہہ کر روم سے چلی گئی۔ تاشفین فریش ہو کر باہر آئے تو اس نے صرف پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ ہبا نے اسے دیکھا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی اور نظریں جھکا لی۔ تاشفین اسے دیکھ کے مسکرایا اور بیڈ سے شرٹ اٹھا کر پہننے لگا جو ہبا نے پریس کر کے بیڈ پر رکھی تھی۔ پھر اپنی ٹائی لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ یہ فین جی کتنے وہ ہیں، ایسے کوئی واش روم سے باہر آتا ہے کیا؟ ہبا خود سے کہتے ہوئے بیڈ شیٹ درست کرنے لگی۔ تب تاشفین واپس باہر آیا۔ وہ وائٹ شرٹ کے ساتھ گرے پینٹ ہلکی سی داڑھی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ گیلے بال اس کی پیشانی پر پڑے تھے۔ تاشفین آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا، جیل لگا کر بال پیچھے سیٹ کیے، رائٹ ہینڈ میں خوبصورت ڈائل والی واچ پہن کر خود پر پرفیوم کا اسپرے کیا، ایک ہاتھ میں والیٹ اور گاڑی کی کیز اٹھائی
और दूसरे हاتھ में बैग उठाकर हिबा के पास आया। चले मिसेस ताशफीन, उसने हिबा के पास आकर उसके कान में सरगोशी की। जी जी फैन जी चलें। हिबा ने उसकी तरफ देखा तो बेख्तियार माशाल्लाह कहा। फैन जी आज आप इतने प्यारे लग रहे हैं, आज आपको जिन उठा कर ले जाएगा। हिबा ने मुंह ही मुंह में आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर फूकी और उसे जिन से डराने लगी। ताशफीन का जोरदार कहका गूंजा। उसने हिबा का चेहरा गौर से देखा जहाँ उसके लिए सताइश थी। वो उसके माथे पर बोसा दे गया। मेरी जान नहीं लेके जाता जीन, और तुम अपना बहुत ख्याल रखना। किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने कुछ कहा तो मुझे बताना। मैं आज तुम्हारे लिए सेल फोन भी लेता आऊँगा। बाहर जाना, अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे खाना, सब टाइम से खा लेना। बेशक रूम में ला के खा लेना। अगर वहाँ फूफो से शर्माओ तो। और जब मैं घर आऊँगा तो मुझे तुम रूम में नज़र आओ, ओके? ताशफीन किसी बड़ी खातून की तरह से नसीहतें कर रहा था। हिबा ने बस हाँ में सर हिलाया और दोनों डाइनिंग हॉल की तरफ चले गए। निसा बेगम टेबल पर बैठी लीजा का इंतज़ार कर रही थी। तभी ताशफीन ऑफिस के लिए रेडी हॉल में दाखिल हुआ। उसके पीछे हिबा को आते हुए देख कर उनके चेहरे पर नागवारी आई। गुड मॉर्निंग पुप्पो। ताशफीन ने अपनी चीज़ें टेबल पर रखते हुए उन्हें सलाम किया। गुड मॉर्निंग मेरी जान, कैसे हो? ऑफिस जा रहे हो? उन्होंने लहजे में प्यार समाकर मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक हो पुप्पो, ऑफिस ही जा रहा हूँ। आप मेरी वाइफी का ख्याल रखना। ताशफी ने हिबा की तरफ देखते हुए कहा जो किचन में जा रही थी। क्यों, ये छोटी बच्ची है जिसका ख्याल रखना पड़ता है? वो ना चाहते हुए भी तलक हो गई। नहीं पुप्पो, ख्याल तो वो खुद रख सकती है और मैं भी हूँ उसका ख्याल रखने के लिए। लेकिन वो अभी नई नहीं है ना, आपको नहीं जानती, आपसे झिझकती है। आप उसकी झिझक कम करें। निसा बेगम ने हंकार भरा और अपने टोस्ट पर जैम लगाने लगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अलीज़ा फ्रेश फ्रेश सी डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। उसने स्काई ब्लू शॉर्ट सी शर्ट के नीचे ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। स्टेप कटिंग में कटे हुए बाल उसने खुले छोड़े हुए थे। गुड मॉर्निंग। ताशफीन ने उस पर एक गलत निगाह डालकर जवाब दिया और हिबा को देखने लगा जो नाश्ता लाकर टेबल पर रख रही थी। यहाँ कोई इतना हैवी नाश्ता नहीं करता लड़की, ये पराठा यहाँ से उठाओ। काशी ने तुम्हें बताया नहीं कि वो भी पराठा नहीं खाता? अलीज़ा ने पराठा देखते हुए नागवारी से उसे टोका। मेरी वाइफी ने पराठा मेरे और अपने लिए बनाया है लीज़ा, और मुझे बहुत पसंद है पराठा, लेकिन सिर्फ अपनी वाइफ के हाथों का बना हुआ। तुम्हारी लुक इतनी अच्छी नहीं है कि मेरी वाइफ तुम्हारे लिए खाना बनाए। आइंदा हिबा को कुछ भी कहने से पहले सोच लेना। जवाब देना उसे भी आता है। ताशफीन ने सख्त लहजे में उसे कहा और हिबा को बैठने का इशारा किया। हिबा ताशफीन की साइड वाली चेयर पर बैठी और अपनी और उसकी प्लेट में पराठा निकाला। ताशफीन बेटा, आज ड्राइवर भी नहीं है तो तुम ऑफिस जाते हुए लीज़ा को यूनिवर्सिटी छोड़ दोगे? निसा बेगम ने ताशफीन का ख़राब मूड देखकर जल्दी से बात बदली। हाँ, नाश्ते के बाद चेंज करके कोई तरीके वाले कपड़े पहन कर आ जाना, गाड़ी में छोड़ दूंगा। चलो हिबा, मुझे अलविदा करके आओ गेट से, और अली से मेरे साथ चलना है तो ढंग के कपड़े पहन कर आना। मैं सिर्फ 5 मिनट वेट करूँगा। ताशफीन ने नाश्ता ख़त्म करके हिबा को बाहर तक चलने को कहा और जाते हुए लीज़ा को भी ड्रेसिंग पर टोक गया। वो दोनों डाइनिंग हॉल से गायब हुए तो अलीज़ा ने गुस्से से माँ की तरफ देखा और जूस का ग्लास उठाकर ज़मीन पर दे मारा। क्या कर रही हो अलीज़ा? मैंने समझाया था तुम्हें कि रिलैक्स रहा करो। क्यों तुम उस जाहिल की मुँह लग रही थी? इस तरह की हरकतें करोगी तो उस जाहिल की जगह हम इस घर से बाहर होंगी। अब इस तरह की कोई हरकत ना करना, समझी? उसके सामने अच्छा बन जाया करो, नहीं बन सकती तो चुप रहा करो। मैं क्यों चुप रहूँ? वो इस जाहिल की वजह से मुझे कितनी सुना कर गया है। अब आप मुझे अच्छा बनने के लिए कह रही हैं। अलीज़ा गुस्से में खोलती हुई माँ पर भड़क रही थी। अच्छा चुप कर जाओ और जाओ जाकर चेंज करो, वो चला जाएगा। अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ताशफीन के साथ गुजारो, उसकी पसंद के मुताबिक ड्रेसिंग किया करो, उसे अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश करो ताकि उसका ध्यान गांव की गवार की तरफ ना जाए और जल्दी उसकी खूबसूरती का भूत ताशफीन के सर से उतर जाए। समझ रही हो ना? निसा बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो उनकी बात अनसुनी करके गुस्से में पाँव पटकती हुई रूम की तरफ चली गई। हिबा, अपना ख्याल रखना। अगर अलीज़ा या फूफो ने कुछ कहा तो भी अम्मा से कहना कि मुझसे बात करवाएं, ठीक है? वो ऐसी ही हैं। अलीज़ा फजूल बोले तो वापस सुनाना। आगे से मुँह पे ताला ना लगा लेना और रूम में ना छुपी रहना। टाइम से खाना खा लेना, बेशक रूम में ही खा लेना। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आ जाऊँ, ओके? अब मुझे गुड बाय करो, शाबाश। ताशफीन उसके आगे झुक गया। ताशफीन उससे हज़ारों नसीहतें कर रहा था। उसने अच्छी तरह मालूम हो चुका था कि फूफो और अलीज़ा उससे खर खाती हैं। वो उसकी गैर मौजूदगी में क्या पता कैसा बिहेव करे उसके साथ। आज रिदा ने भी आना था, पता नहीं वो उसकी निगाह का सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी। ताशफीन को सिर्फ रिदा के रद्द अमल की फ़िक्र थी। मैं कैसे गुड बाय करूँ फैन जी? उसकी बातें गौर से सुन रही थी हिबा। अचानक ताशफीन के उसके आगे झुकने से वह घबरा के पीछे हुई। तो मैं नहीं पता हस्बैंड को गुड बाय कैसे करते हैं?
ताशफीन ने सीधा खड़े होकर मुस्कुराते हुए पूछा। उसने आज भी ताशफीन के लाए हुए ड्रेस में ग्रे कलर की फ्रॉक पहन रखी थी। नहीं फैन जी, मुझे नहीं पता। मेरा तो कोई हस्बैंड ही नहीं था। मुझे कैसे पता होगा? हिबा ने ताशफीन के डिम्पल्स को देखते हुए मासूमियत से कहा। ओके, तो मैं सिखा देता हूँ कि अकेलौते हस्बैंड को कैसे गुड बाय करते हैं। ये लो मेरा बैग पकड़ो, शाबाश। उसने अपना ऑफिस बैग हिबा के हाथों में थमाया और उसका चेहरा हाथों में भरकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। फिर उसके दाएं गाल पर से हाथ हटाकर वहाँ होंठ रख दिए। ऐसे ही उसके दूसरे गाल पर भी किस करके पीछे हट गया। ऐसे करते हैं गुड बाय। सीख लिया है ना? आइंदा ऐसे ही अपने इकलौते हस्बैंड को अलविदा करना। ताशफी ने उसके हाथ से अपना बैग लिया और उसको शौक नज़रों से देखने लगा। हिबा के चेहरे पर शर्म और हया के रंग बिखर गए और उसने शर्म से नज़रें झुका लीं। फैन जी, वो मुझे वॉशरूम जाना है। हिबा उसकी नज़रों से ओझल होना चाहती थी। उसकी कान की लुएं तक तपिश से ढक रही थी। ओके जाओ, आज आकर पक्का पूछूंगा वॉशरूम क्या होता है। तुम्हें जो इतना वॉशरूम जाती हो। अल्लाह हाफिज़, अगेन कह रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ताशफीन ने उसे अल्लाह हाफिज़ कहा और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। उसने गाड़ी का फ्रंट डोर ओपन किया और ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गया। जब तक गाड़ी बैरूनी गेट से अबूर हुई तब तक वो बैक मिरर से हिबा को देखता रहा। हिबा उसे छोड़कर सीधी डाइनिंग हॉल में गई जहाँ निसा बेगम अभी बैठी हुई थी। उन्हें देखकर हिबा ने किचन की तरफ कदम बढ़ाए। ए लड़की, रुको ज़रा। निसा बेगम ने उसे सख्त आवाज़ से रोका। उनके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर हिबा का दिल हलक में आ गया। वो शुरू ही से बहुत जल्दी सहम जाती थी। वो इस तरह के रवैये की बचपन से आती थी। जी। हिबा डरते हुए आहिस्ता से पीछे मुड़ी। उसकी आंखें खौफ से फैल गई थी। न जाने क्या करेंगी वो उसके साथ। तुमने ताशफीन को अपनी इस भोली और खूबसूरत शक्ल से फंसाया है ना। जितने दिन मर्जी तुम खुशियां मना लो, इसके बाद मैं तुम्हें ताशफीन के साथ साथ इस घर से भी निकाल कर रहूंगी। तुम कल की आई गांव की जाहिल गवार लड़की मेरी बेटी की जगह लोगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तुम्हें मैं बहुत जल्द यहाँ से निकाल फेंकूंगी। अलबत्ता खुद ताशफीन तुम्हें धक्के देकर निकालेगा। फिर वो मेरी बेटी से शादी करेगा और वो इस घर की मालकिन बनेगी। बस तुम इंतज़ार करो। निसा बेगम उसे गुस्से से अच्छी तरह बाबर करवा के डाइनिंग हॉल से निकल गई। हिबा उनकी बातों से जी जान से लरस गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बी अम्मा किचन में खड़ी काम कर रही थी। उन्हें निसा बेगम की आवाज़ बआसानी सुनाई दे रही थी। उनके जाने के बाद वो हिबा के पास आई। ये ऐसी ही हैं बेटा, इनकी बातों को दिल से ना लगाओ। ये अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी ताशफीन बेटे से। इस वजह से इन्हें आग लगी हुई है। दफ़ा करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तुम आंसू साफ करो और चलो किचन में। ताशफीन बेटे के लिए लंच के लिए भी कुछ बनाओ ना। उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है, वरना वो तो पराठा कभी भी नहीं खाते। चलो शाबाश आओ। बी अम्मा ने उसे रिलैक्स करने के लिए ताशफीन के खाने का आइडिया दिया ताकि उसका दिल बहल जाए। वो बहुत नरम मिजाज खातून थी। उन्होंने ताशफीन और रिदा को बचपन से संभाला था। ताशफीन वक्त के साथ साथ बहुत बदल चुका था। वो अकेला रहने लगा था, जबकि रिदा उसके बरक्स थी। वो बी अम्मा के बहुत क्लोज थी। वो उन्हें अम्मी ही कहकर पुकारती थी। वो खुश शक्ल होने के साथ साथ जिंदा दिल लड़की थी, लेकिन अपने भाई की तरह मुंहपट थी। अलीज़ा और फूफो से उसकी ज़रा भी नहीं बनती थी। अम्मा जान, फैन जी को खाने में क्या पसंद है? हिबा उनकी बातों से बहल भी गई और खुशी से ताशफीन के लिए लंच बनाने बी अम्मा से उसकी पसंद पूछने लगी। वो सब कुछ ही खा लेता है बेटा, लेकिन चिकन बिरयानी, कबाब, आलू कीमा और मीठे में खीर मिक्स शोर से खाता है। बी अम्मा उसकी सादगी पर मुस्कुरा दी। कितनी शरीफ बच्ची है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। इतनी जल्दी बहल गई। मुझे सब बनाना आता है अम्मा। अभी मैं आलू कीमा बना देती हूँ। रात को बिरयानी खीर बना लेंगे। मैं मुँह धोकर आती हूँ। वो खुश होकर बी अम्मा को बताने लगी और उनकी तरफ बढ़ गई। जी तो रीडर्स, आपको क्या लगता है? क्या रिदा खुशी खुशी ताशफीन के इस अचानक निकाह को कबूल कर लेगी, या वो भी अलीज़ और पप्पो की तरह रिएक्ट करेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।